ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤੋ। ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਸਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਰੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ 10 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੂਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦ ਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋਤੋ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਬਲਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਦ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਸਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਣਸਵੇਂ ਜੁੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪੌਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ। ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 7 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
कि उन्हें तौबा कर ली है। तौबा का भी अद्धियां नूं तां ये नहीं पता तौबा हुंदी की है। वो कहते मेरा सिर दुखदा सीगा, पास्टर ने प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया, बस मेरा उद्धार हो गया। कई लोग अपना ये कहते हैं मेरा काम नहीं सी बनता, मैं बाहर जाना चाहता ही, पादरी ने प्रार्थना की, मैं बाहर चल गया, बस मैं अते मेरा घराना मसीह चक के डोबा दे दिता अते असी जी हुण पूरे क्रिश्चन, नथिंग एल्स। प्यारो जदों स्वर्ग दे विच जाना है ना, स्वर्ग दे विच तां बड़ी तगड़ी एंट्री होनी है। एक स्कूल दे विच जे तुहाडे कोल जन्म सर्टिफिकेट है नहीं ना, तो स्कूल दे विच एंट्री नहीं होंदी है, स्कूल च दाखला नहीं लैंदे। दाखला लैण दे लई उन्हां नूं जन्म सर्टिफिकेट की लोड़ है। इसे तरह एक मसीही जीवन दे विच जदों असीं पूर्णताई नाल आउणा है तां साडे जीवन दे विच नवें जन्म का अनुभव होना जरूरी है। एक विश्वासी दे जीवन दे जे उहनूं नवें जन्म का नहीं पता है, उन्होंने तौबा का नहीं पता है, उन्होंने पश्चाताप का नहीं पता है, छुटकारे का नहीं पता है, तो वह विश्वासी नहीं गिणिया जाएगा। मैं तो इत्थे ये भी सुनता हाँ, मैं बड़ा बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता जदों लोग कहते हैं कि साडी कलीसिया दे विच तां बच्चियां नूं भी अपना प्रभु भोज दिता जाता है, साडी कलीसिया दे विच तां ਜਿਹੜੇ मतलब कि विश्वासी नहीं आ उन्होंने भी प्रभु भोज दिता जाता है। मैं बहुत खिदत है इस गल तो। इस करके पौलुस ने लिखा तुसी बेप्रतीतियां नाल अणसमें ना जुदो। उन्हां नाल साडी कोई सांझ नहीं है। एक गल मैं होर पढ़ना चाहना हाँ, जदों असी पहला कुरंथियां उसका 5 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़ते हाँ, मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। इत्थे पौलुस रसूल ने पहला ही जड़े कुरंथ दे विश्वासी सी उन्हां नूं लिखिया, कहंदा मैं अपनी पत्री विच तुहानूं ये लिखिया है जो हरामकारां दी संगत ना करनी। हरामकार समझते हो जेड़े बिना ब्याह तो बच्चे पैदा हो जाते हैं उन्होंने हरामकार कहते। जेड़े बेविचार तो पैदा होंगे उन्होंने हराम दे कहते, उन्होंने नाम नहीं होता। ते परमेश्वर का दास पौलुस ये क्यों लिख रहा विश्वासियों, काते लिख रहा। अज मसीही जगत दे विच इहो जिहियां बहुत सारियां गल्लां हो गईयां जिन्हां करके लोग गलत 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 सिक्ख्यावां दे नाल इस जगत नूं अपने नाल मिला रहे, मसीही जगत नाल। दैट इज बहुत गलत। परमेश्वर दे वचन दे विच एक गल होर बड़ी साफ रीति नाल लिखी हुई है विआह दे बाबत। वो अपना पुराने नियम दे विच है, नवें नियम दे विच तां इत्थे पौलुस ने क्लीयर ही कर दिता। जदों असी व्यवस्था सार दी पुस्तक उसदा 7 अध्याय पढ़दे हां 1 तो लैके 5 तक, तां ओहदे विच ये गल्लां साफ तौर ते दास मूसा ने इसराइलियां नूं कहियां। की कहियां? फिर जद तेरा परमेश्वर यहोवा तैनूं उस देश विच जिस दे अधिकारी होण नूं तू जा रहा है, किहड़ा देश जिहड़ा परमेश्वर ने चुनिया है, चुन के इसराइलियां नूं दिता है, उस देश विच तू जानते हैं तेरे सामने हित्ती, गिरगशी, अमोरी, कनानी, पजजी, हिब्बी, यबूसी नाम दियां बहुत सारियां जातियां नूं अर्थात तुहाडे विचों वड्डी समर्थ नाल 7 जातियां नूं कढ देवेगा। इहदा मतलब साडा संसार जड़े मतलब कि विश्वासी लोग है उन्हां नाल साडा कोई लेना देना नहीं। पवित्रता दे विच, परमेश्वर दी धार्मिकता दे विच, परमेश्वर दे प्रेम दे विच कोई लेन देन।
पवित्रता दे नाल परमेश्वर अविश्वासियों दे नाल कोई रिश्ता नहीं रखता जद तक कि वो पवित्र ना हो जान। कहण दा भाव जद तक वो नवा जन्म प्राप्त ना करना। नवा जन्म मसीह दे विच परमेश्वर दे संतान हो के पैदा होना। मसीह दे विच क्यों मसीह ने इस अविश्वासी संसार दे लई, इस पापी संसार दे लई अपना प्यारा पुत्र कालवरी क्रूस के उत्ते दे दिता। किस लई? क्योंकि सारा संसार पाप दे हेठ है और पाप तो बचाउण दे लई परमेश्वर ने अपना प्यारा पुत्र इस दुनिया दे विच भेजिया। जेड़ा कोई अज ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापां दे लई मारिया गया, मेरे पापां दे लई दफन किया गया, एक कि मेरे पापां दे लई वचन दे अनुसार वो तीसरे दिहाड़े जी उठिया, हुण वो मेरा प्रभु है अते हुण मेरा जीवन नहीं, किहदा जीवन है? प्रभु दा जीवन है। इस करके पौलुस कहता मैं जिंदा नहीं, मेरे विच मसीह जिंदा है। ते जे मेरे विच मसीह जिंदा है तो मसीह कित्थे दा? स्वर्ग, धरती दा नहीं। फिर साडे विच धरती दियां शारीरिक गल्लां नहीं होणियां चाहीदियां। जे शारीरिक गल्लां हो रही तो असीं हराम दे। वचन साफ कहंदा, मैं नहीं कहता, वचन दे विच लिखिया है। ये भी अगर तुसीं पढ़ना चाहते हैं कि वचन दे विच कित्थे लिखिया है, वचन ते अपना कदों कदों लिखी गई गल मैं वो भी आप दे लई पढ़ दिना। इस तो पहला कि मैं उन्होंने पढ़ा, इत्थे अगे मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। अते तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हां नूं तेरे द्वारा हरा देवेगा, उन्हां उत्ते जित प्राप्त कर लेवेगा। तू उन्हां नूं पूरी रीत नाल नष्ट कर देना, उन्हां नाल ना कोई नेम बनना अते ना उन्हां ते दया करना, ना उन्हां नाल शादी विआह रचना। दैट इज क्लियर। अते ना अपनी धी उन्हां दे पुੱਤ ਲਈ देना अते ना अपनी धी उन्हां दे पुੱਤ ਲਈ ਵਿਆਹ लेना, क्योंकि वो तेरे पुੱਤ ਨੂੰ मेरे पिछे चलण तो बहकाणगियां ते दूसरे देवतियां दी उपासना करवाउणगियां। इस तरह यहोवा दा क्रोध ਤੁਹਾਡੇ उत्ते भड़क उठेगा ते तुसी जल्द नाश हो जाओगे। क्योंकि बाइबल दसदी है पवित्रता दा पवित्रता दे नाल की मेल। बहुते लोग कहते हैं जी असी इस तरह कर लवांगे तो वो मसीह दे विच आ जाए। इहदा मतलब तुसी खुदा बन गए, तुसी परमेश्वर बन गए कि असी अपना इसलिए ब्याह करा लिया कि वो बदल जाएंगे। बहुत गलत सोच है। बदलना परमेश्वर दा काम है, बढ़ाना परमेश्वर दा काम है, साडे जीवन दे विच चुनना परमेश्वर दा काम है, साडा काम नहीं। जे तुसी इस सोच दे नाल काम कर रहे हो, यू आर रॉन्ग, तुसी बहुत गलत हो। फिर तुसी जानदे होए भी अजिहे लोकां दे नाल जुड़ रहे हो। क्यों जुड़ रहे हो? काहदे लई जुड़ रहे हो? मैं तो ये समझदा इसलिए कि वो भी नाराज ना हो जाए, ये भी नाराज ना हो जाए। पर जे परमेश्वर नाराज हो गया प्यारो, स्वर्ग दे विच नहीं फिर नरक दे विच जगह जाएगी। क्योंकि बाइबल दे विच साफ तौर ते लिखिया पवित्रता दे नाल परमेश्वर ने कदे भी इस दुनिया दे विच समझौता नहीं किया। भावें उहदा चुनिया होया पवित्र दास मूसा ही सी, उसनूं भी उस कमांड दे नाल उसने बाहर कढ़ दिता। उस नगर दे विच नहीं जा सकिया जिस नगर दे विच वो देखण दी चाहत रखता सी, जाण दी चाहत रखता सी। परमेश्वर अणखी है, व्यवस्था दे विच ही लिखिया है। वो जल उठण वाला परमेश्वर है। अणखी मतलब विश्वासी नूं उन्हें अपने लहू नाल चुनिया है। जे विश्वासी गलत रीति नाल गलत दुनिया दे विच जाके जोड़ कर लैंदा। कई मैं इहो जे प्रचारक भी वेखे है जिहड़े कह दिंदे आ कि तुसी प्रार्थना करके प्रसाद खा लो, कोई गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। दैट इज रॉन्ग। तुसी की सोचते? जहर दा मिठास दे नाल कोई मेल है ना? वो तो पूरे मिठे नूं भी जहर कर दूंगा, नष्ट हो जाए, थोड़ी पवित्रता खत्म हो जाएगी। पवित्रता दे लई
मैनू परमेश्वर पुत्र दे विच बने रहना है। जिस तरह परमेश्वर दा पुत्र इस धरती दे उत्ते रह के मरण तो बाद जी उठण दे विच भी वो पवित्रता दे विच बनिया रहा, जिसकी साखी इस संसार दे राजा ने दिती। असीं इस दे विच कोई दोष नहीं लभा कि इहने संसार दे नाल मेल कीता, इहने अपनी शरह दे खिलाफ कोई गलत गल कीती। मेरे प्यारे अजीज, बाइबल बड़ी साफ कहती है, की कहती है कि तुसी अविश्वासियों दे नाल अण समय ना जितो, अण समय ना जितो। क्योंकि दो गल्लां रोजाना दी जिंदगी विच जद किसी भी विषय उत्ते प्रकाश मन विच दाखल होंदा है, उस समय तो जिथे तक जिथे विषय का सवाल है सब बदल जाता है। जे प्रकाश है, प्रकाश दे विच हुण मैं लाइट दे विच बैठा, मैनू सब कुछ साफ दिखाई दे रहा। जे नेरे दे विच है तो मैनू कुछ दिखाई देवेगा। मैं तो जो अपना इत्थे वचन लिखिया वो भी नहीं पढ़ सकता। तो नेरे दा चानण दे नाल की मेल, इत्थे सही लिख रहा हो। तुसी नेरे दे विच चल नहीं सकते बिना चानण तो। जे चानण दे विच चलदे हो तो हनेरे नूं अपने विच अडॉप्ट ना करो, चानण दे विच वधदे जाओ। कहण दा भाव वचन दे विच वधदे जाओ। इसे करके तो लेखक ने जबूर 119 का 105 दे विच लिखिया, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक अते मेरे राह दे लिए चानण। एवें नहीं लिखिया उन्हें, कुछ सोच समझ के लिखिया है। ते जे असी इस वचन तो अड होके संसार दे नाल अपना हाथ रखते हैं, इधर हाथ रखते हैं, मेरे प्यारे अजीज बड़ी गलत गल। कई बंदे तो इत्थों तक कहते यार दिल साफ होना चाहिए, बाकी कोई गल नहीं, शरीर च जिद्दां हैगा उदां कर लो। बड़ी गलत गल है। याकूब 2 अध्याय जदों अंतिम पूरी आयत पढ़ते हैं ना, तो लिखिया है, अमला बाजों विश्वास थोड़ा अधूरा है। तो तुसी विश्वासी नहीं। जे तुसी विश्वास किया है ना यसू मसीह के चेले, तो चेले बन के दिखाओ जिदा यसू मसीह से। यसू ने उन्हां दी तरह रंगीले काम नहीं किए। मैं पिछले दिनों दे विच जबूर 1:1 दे उत्ते मनन कीता सी यसू मसीह के चरित्र दे उत्ते। तुसी मेरे यूट्यूब चैनल दे विच इह सुन सकते हो। यसू मसीह का चरित्र बड़ा कलीन चरित्र सीगा। 3 गल्लां उहदे विच आईयां, ना पापियां दे राह दे विच खड़ा हुंदा सी, ना मखौलियां दी जुंडी विच बहिंदा सी, ना उन्हां दे राह दे उत्ते तुरदा सी। स्पष्ट गल सी। चलना, बैठना अते देखना, ये तिन्ने स्वरूप यसू मसीह दे बड़े क्लीयर सी। जे थोड़े क्लीयर नहीं है तो तुसी भावें दिल जिद्दां दा मर्जी रखो, तुहाडा शरीर इदां दा होवे, बड़ा गलत। मैनू पवित्र किया उस महाराजा ने जिहड़ा स्वर्ग दी पवित्र नगरी दे विच पवित्र महाराजा है, जिहदे अगे स्वर्ग दूत ये बोलना नहीं हटदे, होसन्ना 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 उस जिउंदे परमेश्वर। जिथे 24 प्राचीन झुक के उन्होंने मत्था टेकते अते सिजदा, जिथे 4 प्राणी उहदे सिंहासन नूं चुकी ये कहंदे नहीं थकदे, पवित्र 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 सेना दा यहोवा पवित्र। ओ परमेश्वर ओ महाराजा मेरी जिंदगी नूं अपनी पवित्रता दे विच मिलाउण दे लई कालवरी क्रूस दे उत्ते मेरे अते आप दे लई मारिया गया अते कढिया गया ते तीसरे दिन जी उठिया मैनूं पवित्र जिंदगी देण ले। फिर भी मैं संसार दे विच जा रहा, तो मेरे जीवन दे विच होप ना रखो कि परमेश्वर मैनूं स्वर्ग च ले जाए। बाइबल दे विच बहुत सारियां तफसीलां, मेरा समा इत्थे खत्म हो रहा है, बहुत सारियां तफसीलां है जिथे वो कहंदा मैं तुहानूं नरक च ही सट्टूंगा। इसलिए संसार दे नाल विश्वास दे विच होके हथ ना मिलाओ, समझौता ना करो, एक पासे हो जाओ। मैनूं पता है सच दे जीवन दे विच चलना कठिन है, पर सच दे जीवन दे विच चलना मंजिल नूं पाना है। झूठ दे रास्ते विच चलना
बहुत सारे अपना तुहाडे मित्र हो जाणगे, बहुत सारे लोग तुहाडे साथ देणगे, पर तुसी उस मंजिल ते नहीं पहुंच सकते जिथे परमेश्वर ने अपने पुत्र दे नाल मैनू बुलाया है। हुण तुसी फैसला करना है कि तुसी संसार दे नाल चलना है या परमेश्वर दे नाल, क्योंकि अपना रोमिया दी पुस्तक 12 अध्याय उहदी 2 आयत दे विच साफ लिखिया है कि इस संसार दे सदृश ना बनो। इस संसार दे सदृश बार बार विश्वासियों नूं पौलुस नूं ही लिखना क्यों पिया? क्योंकि विश्वासियों नूं उसने इन्हां दे विच चलदे होए वेखिया, इस करके उहनूं कहना पिया परमेश्वर दी भगती अते संसार दोवें मिल नहीं सकते हैं, और परमेश्वर दोनों नूं स्वीकार नहीं कर सकता। इस करके उन्हें कुरंथ 10 अध्याय दे विच कहा तुसी प्रभु दी मेज अते भूतां दी मेज दोनों दे विच शामिल नहीं हो सकते। तुसी प्रभु दे प्याले अते भूतां दे प्याले दे विच शामिल नहीं, एक दे विच चलो। परमेश्वर नहीं तो नरक दी अग दे विच ही। इसलिए मेरे प्यारे अजीज, मेरा जो अज दा विषय सी इस संसार दे ना अणसमें ना जुतो। मेरा कहण दा भाव विश्वासियों दे नाल अणसमें ना जुतो, क्योंकि इत्थे मैं 2 तरह के लोग दस्से जिहड़े मसीह नाल सही संबंध रखते को लोग, जिहड़े मसीह दे नाल सही संबंध नहीं रखते को लोग। जिहड़े मसीह नाल सही संबंध रखते हैं उन्हां दी बोल बाणी अते उठण बैठण, उन्हां दे पहरावे अते चलण दे विच पहचान लग जाती है कि ये विश्वासी है। यू आर क्रिश्चन। पहली शताब्दी दे विच चेले मसीह कहलाए, क्यों? क्योंकि वो मसीह दे सही संबंध नाल चल रहे सी, सही संबंध दे नाल गल्लां कर रहे सी, सही संबंध दे नाल अपनी मंडली दे विच बने हुए सी। इस करके वो मसीही सी। ते अज तुहाडे कोल ये मौका है मसीह दे नाल सही संबंध रख के उहदी जिउंदी आस दे विच परमेश्वर दे नाल शामिल हो जाना। अज तुहाडे कोल ये मौका है। परमेश्वर इस वचन दे नाल आप नूं बरकत देवे। जय मसीह दी। मारा नाम।